Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the reflection of sound, and we will be also seeing the effects of temperature on the sound. ठीक है, हमने last time नहीं देखा था, but we are discussing the various factors जिनके ऊपर sound की speed depend करती है, right? Little bit वो alter हो जाती है because of those factors. And हमने लास्ट लेक्चर में काफी कुछ देखा था, राइट? वी टॉक्ड अबाउट द सोनिक बूम एंड वी टॉक्ड अबाउट द characteristics of sound. And in this lecture, we are going to study only the reflection of the sound and echo. Echo भी हम पढ़ने वाले हैं, the conditions of the echo basically, right? And उसके अलावा भी हम sound के बारे में और भी काफी कुछ जानेंगे. ठीक है, so let's get started. आपको ये जो लेक्चर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको हेल्प कर सकते हैं आपके स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके ओलंपियाड को क्रैक करने में भी. Alright, so what you need to do is you need to study from these video lectures and you need to do the hard work, all the questions and all the things you need to study, and then you're going to get it. Alright, and that would be so good, right? You need to share these video lectures to everybody also, right? So that they can also crack their examination goals with you. Alright, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. Okay, so what you need to do is you need to write the code that is TGB009 in the search box of the Telegram app. So if you do so, drop down list में 9th class का channel appear हो जाएगा, and you can join that channel and access all the DPPs and study material along with the notifications of the classes. Alright, that would be so cool. Now see, this is the team which is going to help you a lot as we are providing you all the necessary information and the content you need to crack the examination, either that is the school examination or the Olympiad. And we are making sure that you get up to that, right? And हमारा main important चीज वो क्या है कि वही ये जो lectures हैं वो सभी के लिए free हैं. Anybody can watch these video lectures, anybody can study from these video lectures. So what you need to do is you need to study from these video lectures and need to share ताकि सभी बच्चों को पता चल सके, सभी बच्चे बहुत मेहनत कर सके, and that will be the most important thing, right? आप ऐसा कर सकते हैं and बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है? बाकी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं. So that would be so cool and you are going to get it, right? You're cool, you will be going to achieve it. Alright, in accordance to these video lectures, हम लोगों ने आपके लिए कुछ packages भी provide किए हैं, and to access those packages you need to go on our website, that is www.talkingtextbook.in. So when you go on our website, you're going to get the two type of packages over there, that is the full one and the test series. फुल पैकेज जब आप देखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको मिनिमम एंड नेसेसरी चीजें मिलेंगी, जैसे कि स्टडी मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट है. वाई तो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको ढूंढने के चक्कर में काफी बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि भाई कौन सा स्टडी मटेरियल पे पढ़ें, कौन सा अच्छा है, कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है वो अच्छा है, उसके चक्कर में हम लोग रह जाते हैं, राइट? काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसकी ये है दैट वी आर टोटली क्रिएटेड दैट मच स्टडी मटेरियल जो कि काफी फोकस्ड है आपके एग्जामिनेशन को लेकर, right? And that is why we have done that. A lot of questions have been added, solved examples are there, all the necessary information is there, right? You just need to study from that, right? And then you'll be getting recorded and live classes that will be free for everybody, right? So are going to study from that materials and you are going to watch these video lectures and then you are able to understand all the concepts. Alright, next one is the homework submission. Homework submission is one of the most important as हम लोग आपके लिए जो तैयार कर रहे हैं मटेरियल उसमें से आप होमवर्क करेंगे. You will be doing the questions, you will be practicing the questions, and then you will be submitting to us, right? And that would be a good thing because homework जो करता है उसके chances एग्जाम में मार्क्स लाने के ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, then comes the testing part. अब सब कुछ कर लिया, स्टडी कर लिया है, वीडियो क्लासेस देख लिया है, होमवर्क कर लिया है, now comes the testing part कि आपने जो सीखा है क्या वो आपको याद है, क्या वो आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में, right? That would be the cool thing क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा और इवन एवरी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल से सभी बच्चे डरते हैं, right? And that is why you need to be tested more, and इसी की वजह से हर एक वीक में you are going to be tested twice. That means you are going to attend the quiz that would be held twice a week, and then you are going to attend the periodic test papers over there, and that would be good, right? पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो चीजें सीखनी होंगी, मतलब जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो चीजें सीखने मिलेंगी दैट वुड बी योर एक्यूरेसी. कितनी एक्यूरेसी है, कितनी स्पीड है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है उन क्वेश्चंस का, वो सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी.
right? And that is why it is the it contains, this packet contains basically all the minimum and important things, right? And that is why it is like full packet, right? Next comes the test series, जिसमें only testing part included है. You are going to get the bi-weekly quizzes, you are going to get the periodic test papers and recorded and live classes. Alright, so that will be good. You can join that. If you are interested to buy them, and if you are really buying them, then you can use my code CY Live to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can use my number, that is 919549041111, to ask all your queries and they will be resolved. Alright, that will be cool. अगर आपको कोई भी queries होती है, ठीक है, कोई भी queries आपको पूछनी है, you want to know more about these packages, then you can call me. Alright, that will be good. Now, let's promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. Okay, and this is the most important thing. चलिए, अब हम आगे चलते हैं. That is the lecture 4. We are going to study the reflection of sound today. But before that, let's look up to the factors जो कि speed of sound को किसी भी way में affect करते हैं. ठीक है, let it be temperature, जो कि पहला factor है. We'll be talking about that, and then we will be going to talk about the reflection of sound, echo, persistence of hearing, conditions of echo. Alright, and we'll be going to watch all these things. So let's get started. Alright. So देखिए, हम जब टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जब यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं. So when we talk about the effect of temperature, for example, summers में टेम्परेचर जो है एयर का, एटमोस्फेयर का, काफी ज्यादा हो जाता है. विंटर्स में यही जो है कम हो जाता है. So what will be the effect of this temperature difference or the temperature on the speed of sound? क्या होगा, क्या तब ज्यादा तेजी से स्पीड जा पाएगी, मतलब साउंड जा पाएगी, ज्यादा स्पीड से साउंड जा पाएगी, जल्दी पहुंचेगी लिसनर तक, या फिर क्या होगा, what will happen actually? So we will be looking up to some numbers. ठीक है, हम फॉर्मूले के बेसिस पे बताएंगे is it true or not, and we'll be look up to that. So देखिए, as the velocity of sound in air is directly proportional to square root of the absolute temperature T. ठीक है, तो जो velocity है of the sound, that is directly proportional to the square root of absolute temperature. Let it be a capital T over here. ठीक है, यहाँ पर मैं capital T mention कर रही हूँ. So जो velocity है, that is not equal to, that is directly proportional. Right, directly proportional है. अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ऐसा होगा कि नहीं, और किस तरीके से हम फॉर्मूला डेरिवेट कर सकते हैं इसका, लेट्स सी. तो देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी वी नॉट. ठीक है, ये है क्या है, यहाँ पे वी नॉट है. ठीक है, at standard temperature and pressure, that is the 0 degree Celsius, right? And so V naught is the speed of the sound at STP, and मान लीजिए किसी एक टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर उसकी स्पीड कितनी है, V है. ठीक है, so जब हम दोनों ही कंडीशंस के लिए वेलोसिटी को लिखेंगे, साउंड की वेलोसिटी को लिखेंगे, तो we should write as V is V naught, right, is directly proportional to under root 273. That would be 0 degree Celsius, right? 273, यहाँ पर हम केल्विन में रख रहे हैं टेम्परेचर. ठीक है, so it would be like V naught will be directly proportional to under root of 273. उसी तरीके से हम V वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं कि भाई जब T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस दौरान वेलोसिटी जो है साउंड की वो V है. So we can write that up to as V is directly proportional to under root of 273 plus T. ठीक है, 273 plus T हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये दोनों चीजें लिख ली. So let's look out up to the connections of these two. हम दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, so when we do that, ये जो proportionality जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, and we are going to get here as V divided by V naught will be equal to under root 273 plus T divided by under root 273. ठीक है, हमने क्या किया है, V पूरा इक्वेशन 2 divided by इक्वेशन 1.
तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया। वाई आई यूज द इक्वल है, मैंने इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जब हम दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर और नीचे दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से डिवाइड करते हैं, और द सेम फॉर्मूला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट, अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर। तो हम डायरेक्टली यहाँ कर रहे हैं, राइट, वी आर डिवाइडिंग दैट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से जो कांस्टेंट आता है वो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू राइट। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे क्या करते हैं, पूरे अंडर रूट को एक साथ ले आते हैं एंड वी डिराइव द इक्वेशन एज V नॉट हम लेके जा रहे हैं दूसरे तरफ, ठीक है, इट वुड बी 1 प्लस T अपॉन 273 की पावर हाफ अंडर रूट, सभी टू अगर मैं पावर लिख रही हूँ किसी नंबर की, दैट मीन्स इट इज अंडर रूट, सो 1 प्लस T अपॉन 273 अंडर रूट। अब आप ये सोचिए कि कैसे आया है, देखिए यहाँ पे 273 डिवाइडेड बाय 273, तो वो तो 1 हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, ठीक है, प्लस T के नीचे भी तो 273 आएगा, राइट, हमने एक तरीके से इस 273 को दोनों के ही नीचे रखा है और कैलकुलेट किया है, ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गेट दिस 1 प्लस 3 अपॉन 273, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि बीच का स्टेप मैंने कैसे ग्रैब कर दिया, तो मैं आपसे पहले लिख देती हूँ, ठीक है, मैं इसे दूसरे कलर में लिख देती हूँ ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका स्टेप लिख रही हूँ, ये वाला कैसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए V अपॉन V नॉट इज इक्वल टू, अगर हम पूरा अंडर रूट एक साथ कर दे, देखिए तो मैंने पूरा अंडर रूट एक साथ कर दिया है, 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 273। अब देखो 273 प्लस T, तो अब ये देखो 273 के नीचे 273 आएगा, राइट, जब हम क्या करेंगे इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड में आएगा, ठीक है, तो देखिए 273 है तो पहले वो इस 273 के नीचे आएगा एंड देन प्लस का साइन लगकर T के नीचे आएगा, तो इट विल बी लाइक जब 273 और 273 होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, दे विल बिकम 1 एंड वी आर गोइंग टू गेट T अपॉन 273, हाफ मैंने बता दिया है दैट इज द अंडर रूट पावर, ठीक है। तो अब आप यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पर जो है ठीक है, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, इसी इक्वेशन को हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये किस टेम्परेचर के लिए हम लोग सूटेबल मान सकते हैं और कब हम इसे सूटेबल नहीं मानेंगे, ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो पूरी इक्वेशन है, यानी कि हमारी ये इक्वेशन हम कब कब यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन यूज होगी, ठीक है, लार्ज वैल्यूज ऑफ T, ठीक है, मतलब जब कभी भी जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन जब कभी भी हम कम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर की बात करते हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए यूज करेंगे एक और सिंपल फॉर्मूला जो कि हम लोग इसी हार्ड फॉर्मूले से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं what you need to do is, देखिए यहाँ पर एक तरीके से हम इसका स्पेशल केस ही ले रहे हैं, स्पेशल केस हम लोग क्या ले रहे हैं कि जो T है वो बहुत ही छोटा है 273 से, ठीक है, ये हमने जो है माना है कि जो टेम्परेचर है वो 273 से काफी छोटा है, इन दैट केस आप किस तरीके से वेलोसिटी का डिपेंडेंस निकाल सकते हैं ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज कर रहे हैं, और बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 273 की पावर हाफ,
जब हम इस पे बाइनोमियल एक्सटेंशन लगाने वाले हैं तो क्या होगा, V नॉट इट वुड बी 1, ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिखने वाले हैं, इट वुड बी 1 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 273, ठीक है। तो ये जो हाफ पावर थी ना, ये सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो हायर टर्म्स हैं उन्हें हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। हायर टर्म्स जो यहाँ पे आने वाले हैं उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो काफी ज्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, सिर्फ यही वाला टर्म हम यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, तो वी वुड बी गेटिंग t डिवाइडेड बाय 6, 4, 5, ठीक है, 2 3 6, 2 7 14 and 1, you will be getting 546, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आपको ये वैल्यू मिल गया। नॉर्मली जब हम V नॉट की बात करते हैं, V नॉट क्या है, V नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वैल्यू है दैट इज V नॉट, और ये जो V नॉट है स्पीड ऑफ द साउंड है। तो नॉर्मली जो स्पीड ऑफ द साउंड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, we are going to get the V as 342 multiplied by 1 upon T divided by 546, ठीक है। अब ये यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, so we are going to do that। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और हमें मिल जाएगा वेलोसिटी एज 332 प्लस, अब ये 332 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 332 multiplied by T upon 546, ठीक है, and you are going to get this as 332 plus 0.61 T. This is the formula, ठीक है, this is the formula जहां पर जो velocity है, this is the velocity of sound, और ये किस तरीके से टेम्परेचर पे बेस्ड है, 332 प्लस 0.61 T, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आप इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, मैं इसे फाइनली लिख देती हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, V इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 T, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन यूज फॉर स्मॉलर वैल्यूज, ठीक है। स्मॉलर वैल्यूज के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर T का वैल्यू काफी ज्यादा आता है तो उस केस में यू आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला, बाइनोमियल एक्सटेंशन वाला जो हम अंडर रूट लिख रहे थे वो वाला फॉर्मूला, and for simple and the smaller values of T, we are going to use this formula, ठीक है। और ये आपको फॉर्मूला क्या बताता है, ये बताता है कि जैसे ही आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो एनवायरनमेंट का, तब आपकी जो साउंड की स्पीड है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये चीज आपको इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड फैक्टर देखेंगे। चलिए, अब हम सेकंड फैक्टर देख रहे हैं, एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। सो बेसिकली सिर्फ इस इफेक्ट की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से भी यहाँ पर जो स्पीड है वो ऑल्टर हो सकती है, ठीक है। आइदर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, लेट्स सी हाउ। बेसिकली जब जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने का क्या मतलब होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब है कि आसपास के इन्वायरमेंट में जो पानी का कंटेंट है, यानी कि वाटर वेपर्स, राइट, उनका जो कंटेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट में आसपास ज्यादा हो गया है, ठीक है। जब ड्राई एटमॉस्फेयर होता है तो मतलब पानी का कंटेंट हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से एयर में काफी कम हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है
उस वक्त क्या होता है, जितना भी जो अमाउंट है पानी का, वाटर वेपर का इन योर इन्वायरमेंट, ठीक है, वो ज्यादा हो जाता है, उसे ही हम ह्यूमिडिटी का बढ़ना बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द साउंड, तो क्या करती है, इंक्रीज करती है, बिकॉज का मोलर मास बढ़ जाता है। देखिए, दिस इज बिकॉज द ग्राम मोलर मास m ऑफ एयर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वाटर वेपर। जैसे ही वाटर वेपर की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन योर एनवायरमेंट बढ़ जाता है, वैसे ही क्या होता है, ग्राम मोलर मास एयर का कम हो जाता है, एंड दैट इज वाई जो स्पीड है साउंड की वो बढ़ जाती है। बट अगर आप क्या करें, अगर आपने क्या किया, प्योर हाइड्रोजन जो है उसमें ऐड कर दिया वाटर वेपर को, इन दैट केस यहाँ पर स्पीड जो है डिक्रीज होने के चांसेस हैं। देखिए, if however water vapor is added to pure hydrogen, the velocity of sound decreases because increase in the value of m। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फैक्टर हमारे लिए क्या है, जो ग्राम मोलर मास ऑफ द एयर है। ठीक है, अगर ग्राम मोलर मास ऑफ द एयर कम हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर ग्राम मोलर मास कम हो जाता है, ठीक है, नॉट इंक्रीज हो जाता है, तो साउंड का स्पीड कम हो जाएगा इन दैट एटमोस्फेयर। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट कर सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड, दैट इज द इफेक्ट ऑफ विंड। तो देखिए, इन केस ऑफ विंड ब्लोइंग, मान लीजिए विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग दो तरीके से देखते हैं, स्पीड दो तरीके से देखते हैं, और वो हम कैसे देखते हैं कि भाई ये जो स्पीड है साउंड की वो, और जो विंड का डायरेक्शन है वो, इन दोनों में बहुत ज्यादा यू कैन से वी आर गोइंग टू गेट अ रिलेशन बिटवीन दैम, क्योंकि जैसे ही विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज होती है, वैसे ही साउंड की डायरेक्शन एंड स्पीड भी चेंज होती है। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए कि भाई जो विंड है वो चल रही है, हवा चल रही है, थीटा वो है एंगल बिटवीन द स्पीड ऑफ विंड W एंड स्पीड ऑफ साउंड V, दैन द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड इज। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे मान लिया, देखिए यहाँ पे कि भाई जो रिजल्टेंट स्पीड है, लेट इट बी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो है, यहाँ पर है स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, हवा बह रही है इस डायरेक्शन में, और हमारी जो साउंड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, एंड थीटा इज बिटवीन दिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे, जो टोटल रिजल्टेंट आपको स्पीड मिल रही है साउंड की, टोटल रिजल्टेंट स्पीड मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, स्पीड ऑफ साउंड प्लस जो कि हवा की स्पीड है उसका मल्टीप्लाइड बाय द कॉस थीटा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका फैक्टर ले रहे हैं इन द स्पीड। ठीक है, जिस डायरेक्शन में साउंड है वहां से उसका फैक्टर ले रहे हैं कॉस थीटा। इसी के बेसिस पे आप सेकंड फैक्टर्स भी देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ स्पेशल केस के उसमें, देखिए थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर इस थीटा को हम जीरो कर देंगे तो फिर क्या होगा, कॉस जीरो कितना होता है, जीरो, so sorry 1, right, it would be 1, cos 0 would be 1, so you are going to get W, सिर्फ W मिल जाएगा, और उसमें क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो इट विल गेट एड अप, है ना। तो अगर जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है ना, और जिस डायरेक्शन में स्पीड जो साउंड है, साउंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है, जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल कर रही है, ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर ये इनका जो स्पीड है, साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। वहीं पर अगर हम क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन कर दें, लेट इट बी साउंड इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन दैट केस डिक्रीज होने वाली है स्पीड। देखो, रिजल्टेंट स्पीड जो साउंड की होगी वो होगी साउंड का स्पीड माइनस विंड का स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है रिजल्टेंट मिल जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द साउंड। तो विंड भी एक तरीके का एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है जो कि अफेक्ट करता है बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड का, वो चेंज कर देता है उसे। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलिए,
अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं। हमने लाइट का रिफ्लेक्शन देखा है, राइट? किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है आपको पता है? देखिए, रिफ्लेक्शन का मीनिंग है कि भाई एक मीडियम से कोई भी वेव, कोई भी लाइट वेव हो सकता है, साउंड वेव हो सकता है, एनी वेव, वो अगर जाती है और किसी भी सरफेस से, ठीक है, टकरा के वापस आ जाए उसी मीडियम में, दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। और ये सिर्फ लाइट के साथ ही नहीं, साउंड के साथ भी होता है। लाइट के लिए आपको चाहिए कैसा भी सरफेस, राइट? इसी तरीके से साउंड के लिए भी कैसा भी सरफेस चल सकता है, ठीक है? तो देखिए, when sound waves strike a surface, they return back into the same medium. This phenomenon is called reflection. ठीक है? साउंड वेव जाएंगी किसी सरफेस से टकराएंगी एंड दे विल कम बैक जस्ट लाइक द टोन। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो साउंड वेव इस तरीके से जा रही है, दरवाजे से टकरा के वापस आ रही है, ठीक है? तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह हो रहा है जिस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज सिमिलर टू दैट ऑफ लाइट वेव। The only difference is that sound waves being larger in length require bigger surfaces for reflection. छोटे मोटे सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपने घर में आराम से बैठे हैं, ठीक है, और आसपास काफी सारा सामान आपके रूम में है, आप बढ़िया से अपने रूम में बैठे हैं, तो आपकी आवाज गूंजेगी नहीं, ठीक है? दैट मीन्स वो रिटर्न नहीं हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है चीजों से। यही रीजन है कि हमारे घर में जो कि नॉर्मली सामानों से भरा है, वहां पे जो है इको नहीं आता, रिफ्लेक्शन नहीं होता साउंड का। इको इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, राइट? तो यहाँ पे मेन हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि वापस लौट आना साउंड का, दैट इज द रिफ्लेक्शन ओवर हियर। और इसको करने के लिए, मतलब इस रिफ्लेक्शन को पॉसिबल करने के लिए साउंड वेव के लिए बड़ा सरफेस चाहिए। वो हर छोटे सरफेसेस से नहीं होती, छोटे सरफेसेस में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपको बिल्कुल पता है क्योंकि ये सेम टू सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जैसे कि हमने लाइट में स्टडी किया था। तो देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ फिर से भाई, तो लेट इट बी द सरफेस, ये एक सरफेस है, ठीक है? यहाँ पे जो साउंड वेव है वो जा रही है, यहाँ से साउंड वेव आ रही है, ठीक है? एंड दे आर लाइक फॉलोइंग एवरी रूल ओवर हियर। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ये दोनों एंगल ऑलवेज सेम रहेंगे, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है? जैसा कि हमने लाइट में देखा था, लाइट चैप्टर में स्टडी किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है? प्रूफ देखें इसका कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेट्स सी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक कार्डबोर्ड लिया, दिस एक्स वाई इज द कार्डबोर्ड, खड़ा करके रख दिया है हमने इसे, ठीक है? फिर हमने दो हॉलो ट्यूब ली, ये दो हॉलो ट्यूब हैं और ये हॉलो ट्यूब अंदर से काफी ज्यादा शाइनी है, ठीक है? कैसी है? काफी ज्यादा शाइनी है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो देखिए, हमने यहाँ पर एक वॉच रख दी है जो कि टिक 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 ऐसे चलेगी, तो बेसिकली ये साउंड प्रोड्यूस करेगी और बहुत ही छोटी सी साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है? दूसरे ट्यूब को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमाने की देख रहे हैं, मतलब ये जो ट्यूब है ये फिक्स कर दिया हमने, ठीक है? जहां से जो साउंड है वो एंटर कर रही है, ठीक है? उसके बाद हम लोग चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी पुट इट ऑल द थ्योरीज ओवर हियर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया, दिस ट्यूब इज फिक्स। ये वाली जो ट्यूब है इसे हम रोटेट कर सकते हैं। किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं कि भाई इसे हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं, इसे इस तरीके से लेके जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ से ये जो है फिक्स है एंड कैन बी रोटेटेड लाइक दिस, ठीक है? अब हमें पता करना है कि क्या ये जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। तो देखिए, यहाँ से साउंड जो है वो जा रही है और हमने हिलाकर देखा कि भाई ये जो साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ एंटर कर रही थी वो हमें कब सुनाई देगी और कैसे सुनाई देगी। जब हम इसे चारों तरफ रोटेट करके जब पता कर रहे हैं कि भाई यहाँ से लाइट, ये जो साउंड है, वेव है, जब सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी, तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्कुल इस एंगल पे जो है लाइट वेव, सॉरी, साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट होकर आ गई है, ठीक है? यहाँ से जब हम देखेंगे तो फिर पता चलेगा साउंड
जो वेव है वो बिल्कुल उसी एंगल पे हमें सुनने को मिली जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है। ये जो एंगल है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बिल्कुल उसी एंगल पर ही हमें इस बी ट्यूब से साउंड सुनाई देगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं अपने घर पे। आपको सचमुच में ये पता चलेगा कि साउंड सचमुच में सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है एंड ये सचमुच में रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि नहीं होती है, ये तो क्या है, साउंड थोड़ी करेगी, राइट। बट इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो एंगल है TCN और BCN, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, होंगे भी। ठीक है, एंड दैट इज द थिंग यू कैन गेट अबाउट दिस कि साउंड जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, देखते हैं कि कहाँ जिंदगी में हमारे लिए यूज होता है बेसिकली। तो देखो, जब कभी हम किसी पर्सन को बुलाते हैं, लेट इट बी कि तुम्हारा फ्रेंड थोड़ा दूर खड़ा है, ठीक है, और तुम्हें उसको बुलाना है, या तो तुम चिल्ला के बोलोगे या फिर तुम थोड़ी समझदारी दिखाओगे। कैसे? तुम क्या करोगे, इस तरीके से कप करके, है ना, अपने हाथों का ऐसे कप करके, एंड यू विल शाउट, है ना, जिसको भी बुलाना है यू विल शाउट। क्यों और कैसे आप इसे शाउट कर रहे हो? आप इस तरीके से करने से क्या हो जाएगा कि भाई उसको जल्दी सुनाई में आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आप तो दे रहे हो एनर्जी, है ना। अगर आप तेजी से बोलोगे और अगर आप सिंपली जोर से चिल्लाओगे बिना ऐसे कब करे, अगर आप जोर से चिल्लाते हो तो आपकी जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, वो सभी डायरेक्शन में जाएगी। मतलब वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी। ठीक है, मतलब वो सभी डायरेक्शन में जाएगी फ्रॉम दिस स्पेस, राइट। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो आवाज उस तक पहुंचानी है अपनी फ्रेंड तक। इसीलिए हम क्या करें, वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कट करके बोलेंगे ताकि इधर वाली डायरेक्शन में जाए ही नहीं। अब आधी एनर्जी जो इधर जाने वाली थी उसको तो हमने बता के सीधे फोकस कर दिया ना, एंड दैट इज द रीजन कि अब वो सीधे जाएगी और आपके फ्रेंड को वो आवाज सुनाई में आ जाएगी। सो जब कभी भी आपका फ्रेंड दूर हो एंड यू वांट टू कॉल देम आउट, देन मेक श्योर दैट यू डू दिस सो दैट यू कैन सेव योर एनर्जी, राइट। एंड देखिए, ये चीजें आपको इस तरीके के मेगाफोन में भी दिखने को मिले होंगी। ठीक है, मेगाफोन्स बोलते हैं तो मेगाफोन्स में भी सिमिलर यही होता है। ये देखिए, यहाँ से आप बोलते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होते 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 दिस बिकम पैरेलल। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन ऑल द डायरेक्शन को फोकस होके एक ही जगह पे जा रही है, तो जितना भी एनर्जी है वो सब एक ही जगह पे जा रही है। दैट इज वाई ज्यादा एनर्जी जाएगी और उस पर्सन को या फिर जिसको भी हम ये बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उसको इजीली हम सुना पाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन कि हम क्या कर रहे हैं, इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज कर रहे हैं ताकि हम सारी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में फोकस कर सके। ठीक है, ये मेगाफोन्स में होता है एंड लाउड स्पीकर्स में भी यही होता है। इवन जो बारात में जो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम बारात वगैरह में यूज करते हैं, उनका शेप भी कुछ ऐसा होता है, कर्व टाइप का होता है, राइट। एंड एक बहुत ही ब्रॉड ओपनिंग वहां होती है, राइट। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, इसके अंदर भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का भी यूज है। वो तो सिर्फ एयर ब्लो करते हैं, फिर भी इतनी तेज साउंड आती है। द रिजल्ट इज क्योंकि सारी एनर्जी रिफ्लेक्शन के थ्रू वहीं पर कंसेंट्रेट होकर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, right? And in that case, you are going to get much more energy over there. ठीक है, and that's why we can say this is a good application of the sound. नेक्स्ट आप देखिए स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास तो सभी जाते हैं, कभी ना कभी हम डॉक्टर के पास सभी जाते हैं, राइट। डॉक्टर सबसे पहले यही करते हैं कि भाई अपने कानों में जो प्लग हैं वो लगाए, स्टेथोस्कोप के प्लग कानों में लगाए, और एक डायाफ्राम कुछ होता है, सरफेस होता है, एंड उसको वो हमारे हार्ट पे रखता है, राइट, ताकि वो हार्ट बीट सुन सके, राइट। ये जो हार्ट बीट उसे सुनाई दे रही है, कैसे सुनाई दे रही है? वो तो बहुत ही कम होती है, राइट, बहुत ही, यू कैन से बहुत ही, हमें तो सुनाई नहीं देती, लेकिन हमें फील है, राइट। लेकिन अंदर क्या हो रहा होता है उस वायर में क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन चल रहे होते हैं। जो साउंड वेव है वो आपके हर्ट से निकल के इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते 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 डॉक्टर के कानों तक पहुंचते हैं, एंड देन ही डिसाइड कि भाई आपको बुखार है या क्या प्रॉब्लम है या कुछ गड़बड़ भी है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर लिसनिंग साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, स्पेशली इन द हार्ट एंड द लंग्स। ठीक है, वो मोस्टली उन स्मॉल साउंड को कैप्चर कर सकता है जो कि बहुत ही कम होती है, जो हमें तो पता ही नहीं लगती। In the stethoscope, the sound produced within the body of a patient to picked up by a sensitive diaphragm and then reaches the doctor ears by multiple reflections. Alright, तो ये एक बहुत ही अच्छा यूज है जो कि हम
यूज कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट कम्स द साउंड बोर्ड। अब भाई मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा हॉल है एंड आप चाहते हैं कि आप जो बोले वो सभी लोगों को सुनाई दे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आगे आगे के लोगों को सुन रहा है, पीछे के लोगों को नहीं सुन रहा। ठीक है, तो फिर सबसे बढ़िया इंतजाम क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि आप ऐसी जगह पे स्पीकर्स रखवा दें या फिर ऐसी जगह पे माइक रखवा दें जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर सभी लोगों तक पहुंच जाए। एंड द गुड एग्जाम्पल इज दिस प्लेस। अब अगर आप यहाँ पे लेट इट बी, अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ पर सोर्स है साउंड का, ऑलराइट, तो देखो यहाँ से सीधे सीधे तो जाएगा ही जाएगा, मतलब यहाँ से सीधे सीधे सारी साउंड रेज तो जाएंगी जाएंगी, पर वो पीछे जाके आपके बैकग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके भी सीधे सीधे जाएंगी एंड देन यू आर गोइंग टू गेट अ पैरेलल बीम ऑफ वेव जो कि डायरेक्टली आपके स्पीकर तक पहुंच रहा है, सॉरी लिसनर्स तक पहुंच रहा है, राइट। तो बेसिकली बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में, हॉल्स में ये जो है प्रोसेस किया जाता है। मेनली उन हॉल्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल बीम बन जाए और सभी लोगों को इजीली सारी साउंड सुनाई दे जाए। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा यू कैन से यूज है। यहाँ पर हम इसे बोलते हैं साउंड बोर्ड। दिस पिंक यू कैन से सरफेस, दिस पिंक सरफेस इज द साउंड बोर्ड। ये साउंड बोर्ड आपकी आवाज को रिफ्लेक्ट करके पूरे डायरेक्शंस में फैला देता है, एक तरीके से पैरेलल बीम क्रिएट करता है जो कि सभी लोगों तक पहुंच पाती है। ठीक है, चलिए अब हम इको की बात करते हैं। व्हाट इज दैट इको? आपने अक्सर ऐसी प्लेसेस पे देखा होगा, भाई टूरिस्ट प्लेसेस पे गए होंगे आप लोग कभी ना कभी तो घूमने, राइट, और वहां पे एक पॉइंट होता है दैट इज द इको पॉइंट। एंड स्पेशली ये जो पॉइंट होता है वो स्पेशली माउंटेन्स पर होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट इको पॉइंट? आपने कभी ऑब्जर्व किया, कभी एक्सपीरियंस किया? इको पॉइंट पे क्या होता है कि जब आप कभी भी जोर से कुछ भी बोलते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स आपको सुनाई देता है थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, एंड दिस इज द इको। एंड एक्चुअली में दिस इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लिटरली इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए, echo is based on the reflection of sound and echo is defined as a repetition of sound due to reflection। reflection की वजह से आपने जो बोला है, ठीक है, वो तो गया ही गया, टकराने के बाद वो आप तक वापस आया एंड यू हर्ड इट। जब आपने सुना तो आपकी खुद की ही आवाज थी, राइट, एंड इट टेक्स एज समवन एल्स इज टॉकिंग टू यू, राइट। आपको ऐसा लगता है बट एक्चुअली में आप ही की आवाज के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होके आते हैं वहां पे, राइट। देखिए, जब कभी भी कोई भी इको पॉइंट लाउडली बोलता है, ठीक है, तो आपको जो थोड़ी देर बाद आवाज वापस सुनाई देती है दैट इज नोन एज द इको। ठीक है, देखिए कुछ प्लेसेस पे आपने मल्टीपल इको सुनाई देगा। ठीक है, मतलब आपने एक बार हेलो बोला तो 3 बार हेलो आ रहा है। ठीक है, 3 बार, तो दैट इज द मल्टीपल इको, है ना। और आपने हेलो बोला, एक ही बार हेलो आ रहा है वापस, तो मतलब दैट इज जस्ट अ सिंगल। ठीक है, मतलब एक ही रिफ्लेक्शन हुआ है। अगर 3 बार आता है हेलो हेलो हेलो, है ना, तो धीरे 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 आवाज की इंटेंसिटी कम होते जाती है ना। तो ये जो केस है यहाँ पर हम इसे बोलेंगे मल्टीपल इको। ठीक है, तो इट इज लाइक, देखो कोई भी बोल रहा है, एनर्जी जा रही है एंड आफ्टर अ सरफेस टकराने के बाद इट इज कमिंग बैक। ठीक है, दिस इज द इको ओनली एंड दिस इज रिफ्लेक्शन, बेसिकली दिस इज रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये किस कारण होता है। We just want to know a little bit else thing that is known as the persistence of hearing। persistence of hearing का मतलब क्या होता है? आपको किन्हीं दो बातों को अगर अलग अलग समझना है, दो आवाजों को अगर अलग अलग समझना है, तो इन दोनों आवाजों के सुनने का बीच का इंटरवल शुड बी 1/10 सेकेंड। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों आवाजें आपको मिक्स सुनाई देंगी और आपको एक पर्टिकुलर आवाज जो है वो नहीं सुनाई देगी, आपको फिर शोर सुनाई देगा, आपको मिक्स चीजें सुनाई देंगी, आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि ये दो आवाजें क्या थी। इसे ही हम क्या बोलेंगे? persistence of sound। ठीक है, due to persistence of sound a person can't hear two sounds if the time delay between them is less than 1/10 सेकेंड। तो मतलब एक आवाज आई, है ना, आपके कान तक आई एंड 1/10 सेकेंड के मतलब वो खत्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही 1/10 सेकेंड के पहले ही दूसरी साउंड आपके कान तक पहुंच गई, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। दैट इज नोन एज द पर्सिस्टेंस ऑफ साउंड। पहली साउंड आए और 1/10 सेकेंड के बाद दूसरी साउंड आए तो आप समझ जाएंगे क्लियरली क्या बोला गया या फिर क्या कहा गया है, राइट। लेकिन अगर दो आवाजों के बीच का डिफरेंस 1/10 सेकेंड, टाइम डिफरेंस अगर 1/10 सेकेंड नहीं होता, उससे कम होता है, तो आपको मिक्स
साउंड सुनाई देगी और आपको क्लियरली दोनों आवाजें नहीं सुनाई देगी, पता ही नहीं चलेगा क्या था क्या नहीं, क्योंकि आपको तो मिक्स पता चल रहा है, राइट। तो अब जो साउंड है आपको एक सिंगल साउंड की तरह अपीयर होगी, आपको एक सिंगल साउंड की तरह सुनाई में आएगी, दैट इज नोन एज द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब देखते हैं हम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इको। अब देखते हैं क्या थी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर। आप जहां खड़े हैं, ठीक है, या फिर जो सोर्स है जहां से साउंड एमिट हो रही है वो, और रिफ्लेक्ट करने वाली जो बॉडी है, जो सरफेस है, पहाड़, दीवार, कुछ भी, वो कम से कम 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर 17 मीटर की दूरी पर नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स आपको आपका रिफ्लेक्शन सुनाई नहीं देगा, इको नहीं होगा। सेकेंड देखिए, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। जो साउंड की वेवलेंथ है वो उसकी हाइट से कम होना चाहिए, अगर ज्यादा हुआ तो वो तो क्रॉस ही कर जाएगा, राइट। तो वो रिफ्लेक्ट होने का फिर कोई मतलब नहीं होगा, इको विल नॉट कम बैक टू यू, राइट। नेक्स्ट देखो, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट कैन बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं आप बहुत धीरे से बोल रहे हैं, अब एनर्जी नहीं है, एनर्जी को वहां से लौट कर आने में आप तक पहुंचने के लिए भी तो चाहिए, राइट। तो इतना सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए कि वो जाए, टकरा कर वापस आए, एंड यू आर एबल टू हर्ड दैट साउंड। ठीक है, दैट इज व्हाट आर द कंडीशंस ओवर हियर, जो कि हमें क्या करनी है, फुलफिल करनी है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं रिवर्बरेशन। सो व्हाट आर दी? आई नो दैट आपने सभी लोगों ने अभी तक मूवीज देखी है, राइट। एंड वो जो मूवीज आपने मूवी थिएटर में कभी देखी है, ठीक है, मूवी थिएटर, ठीक है, सबको पता होता है क्या होता है, राइट। तो बेसिकली जब आप मूवी थिएटर में जाते हैं तो आपके लिए होती है बड़ी सी स्क्रीन, और वहां की साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, राइट। आपको बहुत ही अच्छे से सारी आवाजें, डायलॉग सब समझ में आता है, पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत क्लियरली आपको समझ में आता है, और इवन बहुत क्लियरली सुनाई देता है, राइट। आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, मीन आपको और ज्यादा इंजॉय कराने के लिए, आपको पता है रिवर्बरेशन का यूज होता है। रिवर्बरेशन का मतलब ये कि जब कभी भी साउंड को एमिट किया जाता है तो फिर साउंड के गति कई चीजों से टकरा के कुछ देर तक वहीं रहती है। सो ये जो मूवी थिएटर्स होते हैं उनमें भी बिल्कुल यही है ना, सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर, इन सब में भी यही होता है। जैसे जो स्पीकर्स होते हैं जहां से आवाज आती है, वो आवाज पूरे हॉल में इधर टकराती है, उधर टकराती है, उधर टकराती है, उधर, और थोड़ी देर के लिए वहीं रहती है। इसी को हम बोलेंगे रिवर्बरेशन, वहीं पर रहना थोड़ी देर के लिए। अगर ज्यादा अमाउंट के लिए वहां पर रिवर्बरेशन रह गया तो मजा नहीं आएगा। तो मजा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, दो तीन साउंड्स में कंफ्यूजन होगा, तो फिर आप बोलेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा रिवर्बरेशन वहां पर होता है। आपने बड़े बड़े पर्दे देखे होंगे, राइट। ये पर्दे क्यों टांगे जाते हैं? ताकि वो रिवर्बरेशन, जो एक्स्ट्रा रिवर्बरेशन है, उनको वो एब्जॉर्ब कर ले और आपको एक बहुत ही बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस दे, राइट। ये उनका जो है वो रहती है ट्रिक, so that you can get up to a beautiful experience about the sound. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, when a sound is produced in a big hall, its waves reflect from the walls and travel back and forth. दीवारों से टकरा के आवाज जो है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे रिफ्लेक्शन होते रहते हैं जब तक उसकी पूरी एनर्जी लॉस नहीं हो जाती इन द एनवायरमेंट। ठीक है, फिर देखते हैं, due to this the sound does not vanish at once but it fades away gradually, that is the sound persists even after its production has been stopped. थोड़ी देर के लिए धीरे 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 करते करते खत्म होती है, एग्जैक्ट तुरंत कभी खत्म नहीं हो जाती है। तो ये जो ड्यूरेशन है, मतलब साउंड आई और जो पूरा धीरे 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 खत्म होने के चांस है, ये ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए टाइम इंटरवल। ज्यादा लंबा होगा तो आपको हमेशा एक शोर सुनाई देगा। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि इसको हमें क्या करना है, जो साउंड रह जाती है, आप एमिट नहीं कर रहे फिर भी कुछ देर तक रह जाती है जो साउंड है, ये साउंड हमें किसी तरह कम करनी है। Alright, a small amount of reverberation is desirable in large halls or cinemas as it makes the sound pleasant and more effective. तो यहाँ पे ये जो रिवर्बरेशन है, मतलब ये जो साउंड का रह जाना, धीरे 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 खत्म होना, ये जो साउंड का रिफ्लेक्शन होगा, ये रिवर्बरेशन अगर थोड़े अमाउंट में हो तब तो तुम लोग को और भी मजा आएगा, राइट। और यही काम बिग हॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स में किया जाता है। रिवर्बरेशन को वहां पर थोड़ी देर में ही वैनिश करवा दिया जाता है, ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया जाता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई देयर आर सो मच थिंग्स लाइक वुडन बोर्ड्स होते हैं,
और कर्टन्स होते हैं, सो दैट वो एक्स्ट्रा रिवर्बरेशन को एब्जॉर्ब कर ले और आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सके. However, too much reverberation is undesirable as it makes the sound confusing. ज्यादा अगर reverberation हो गए तो आपको कंफ्यूजन होगा, साउंड कंफ्यूज होगी, क्या यार क्या कैसी आवाज आ रही है. ठीक है, एंड उसी को बचाने के लिए टू डू दिस राइट, to reduce reverberation, the roof and wall of the hall are covered with sound absorbing materials like rough plaster, thick curtains. राइट, तो यहाँ पर इस रिवर्बरेशन को कम करने के लिए, मतलब जो आवाज रह जाती है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत ही ज्यादा साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज किया जाता है इन द वॉल्स. एंड आपको साइड में दीवारों पे, साइड वॉल जो है वहां पे बड़े बड़े कर्टेन्स मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा रिवर्बरेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, one may define reverberation as the persistence of sound due to repeated reflection and is gradually fading away. रिवर्बरेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, उसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो, तो इट इज लाइक दैट कि जो रिवर्बरेशन है ये होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, जो कि वही रह जाती है और धीरे 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 खत्म होती है, फेड अवे होती है. दैट इज नोन एज द रिवर्बरेशन. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं relation between speed of sound, time of hearing echo and distance of the reflecting body. Let's see that. What is this? ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट से जो है देखते हैं. तो देखिए, लेट इट बी, मैं आपके लिए बनाती हूँ पहाड़ी, है ना, ये है एक पहाड़ी और इस पहाड़ी से साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके आने वाली है. ठीक है, तो देखो लेट इट बी, कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और ये जो पर्सन है वो डी डिस्टेंस दूरी पर है. ठीक है, डी डिस्टेंस दूरी पर है फ्रॉम दी पहाड़ी, माउंटेन, लेट इट बी, है ना. तो देखिए अब क्या होगा, जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, जब ये पर्सन साउंड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, साउंड यहां से जाएगी, टकरा के वापस आएगी. सही बात है कि नहीं बात है. तो इसका मतलब साउंड पर्सन से माउंटेन तक गई, उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, माउंटेन से टकराने के बाद वापस आई, उसने फिर से डी डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड बताना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी, अगर स्पीड ऑफ साउंड अगर हम बताना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड. भाई साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. ठीक है, अब हमें तो पता है डी डिस्टेंस प्लस डी डिस्टेंस, दो बार डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक बार गई एक बार लौट के वापस आई, तो वेलोसिटी साउंड की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ डी डिवाइडेड बाय द टाइम. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, टाइम ऑफ हियरिंग इको, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस बिटवीन, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी. तो यहाँ पे जब आवाज गई और लौट के आई तब जाके इको आया ना, तब जाके सुनाई ना आया इको, एंड दैट इको, वो जो टाइम है उसको हमने क्या बोला है, टाइम ऑफ हियरिंग इको. ठीक है, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग बॉडी एंड द सोर्स. सो लेट्स राइट दैट. यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है v इज द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, d इज the distance between source and reflecting body. ठीक है, and t time of hearing echo. ठीक है, ऑलराइट, राइट दिस आउट. इससे फटाफट से आप सभी लिख लेंगे. ऑलराइट, इसे फटाफट से सभी लिखेंगे. चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, एंड दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हियरिंग इको. मिनिमम डिस्टेंस हमने देखा था ना 17 मीटर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेट्स कैलकुलेट दैट. ठीक है, अगेन अ रिफ्लेक्टिंग बॉडी, अगेन अ सोर्स, ठीक है, एंड अगेन द डी डिस्टेंस.
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए डी डिस्टेंस है और हमें तो ये बात पता है 17 मीटर आना चाहिए ऑन एन अप्रॉक्स, ठीक है। लेट्स सी आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला है वो तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हमें यहाँ से डी कैलकुलेट करना है। तो जो डी होगा वो क्या होगा, वी टी बाई टू, है ना। स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज द वी। यहाँ पे मैं वापस एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। So it is Vt, velocity of sound, time taken to hear echo, and the distance between the source and the reflecting body. ठीक है, अब आप यहाँ देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, और यू कैन से रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं स्पीड ऑफ साउंड देखूं तो इट इज अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पे टाइम देखें तो ये जो टाइम है, अगर आपको क्लियरली सुनना है, राइट, तो कितना टाइम बताया था, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग में कितना टाइम बताया था, 2 आवाजों के बीच 1/10 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये मिनिमम टाइम है, तो हम इस मिनिमम टाइम को लेकर चलते हैं कि भाई आवाज आने का, सुनाई देने का मिनिमम टाइम हमारे पास जो है वो 1/10 सेकेंड होना चाहिए कि हम अलग अलग 2 आवाजों को समझ सकें, राइट। तो जो यहाँ पर टाइम होगा इज इक्वल टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, and that is why we are going to write that as 1/10 second, right? T is equals to 1/10 second. अब इसको पूरा पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। D would be velocity यानी 340 multiplied by 1/10 divided by 2, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल एंड 2 से कैंसिल, ऑलमोस्ट 17 मीटर, ठीक है। अप्रॉक्स लिख सकते हैं हम इसे। तो हमें पता चल गया है दैट 17 मीटर शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। जब हमने रूम टेम्परेचर की बात की है एंड हमने जब परसिस्टेंस, साउंड की परसिस्टेंस, हियरिंग का परसिस्टेंस को नोट किया है कि भाई 1/10 सेकेंड का इंटरवल 2 आवाजों के बीच में होना चाहिए, राइट। सो वी गॉट अप टू नो कि भाई 17 मीटर शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी, ठीक है, ताकि हम क्लियरली साउंड को सुन सकें। ऑलराइट, फटाफट से नोट कर लीजिए। ऑलराइट, तो देखिए हमने अभी हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड खत्म कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोनार एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ईयर, इनको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड that would be like I'm going to do that ending the lecture, right? So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.